Hello students, my name is Jitendra Kumar. I'm your biology teacher and I welcome you all to the Biogenus NEET Prep. And in today's video, we're going to cover the chapter Neural Control and Coordination, which is the second last chapter of your Human Physiology, class 11. It is a very important chapter in regarding to your NEET exam and as well as class 11th exam and CUET exam and other related exams as well, in which the biology portion has to come. So yeah, I'll give you a quick overview for the topics that we are going to cover in this particular lecture, which is the part one of this chapter. So we're going to discuss about the neural control and coordination. First, the neuron, the structure of neuron, and then types of neuron, then types of axon, then the most important part, that is generation and conduction of nerve impulses. So these are the messages that has to come from your brain to the effector organ or from the receptor to the brain. So these are the messages that are transferring through your neurons from one neuron to another neuron. So how it is generated and how it is conducted, we're going to discuss it. And it has three parts, basically maintenance of resting membrane potential, then moving on to the next, action potential and your propagation of action potential. So after that, we have to discuss about the synaptic transmission of impulses. So synaptic transmission is nothing synaptic, basically synapse. So which is the junction between two neurons. One is the presynaptic neuron and the second one is the postsynaptic neuron. So we have to discuss about the synapses and synaptic transmission of impulse. So moving on to the next part, we will have impulse transmission through chemical synapse. So it is a flow chart from the very beginning. The impulse is going or is transferring from one part to the next part. So yeah, let's get started without wasting any time. Okay, come. So if I talk about the neural control and coordination, first we start with the nervous system. So nervous system, first you have to remember it is ectodermal in origin. Ectodermal in origin. So we have three layers. The one is endoderm, mesoderm, and ectoderm. So the neural tissue is ectodermal in origin. That you have to remember. Neural or nervous system is the system that controls and coordinates with the body activity, conducts and integrates the information and responds to stimuli. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो नर्वस सिस्टम आपका होता है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करवाता है। सारे ऑर्गन्स जो हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनके बीच में एक तालमेल रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, किसकी हेल्प से रहता है? ये नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही रहता है आपका। ठीक है, एंड देन कंडक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो बेसिकली स्टिमुलाई क्या होता है आपका कि सॉरी, सो बेसिकली स्टिमुलाई जो होता है आपका, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट जो आपका है आसपास, जैसे भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो एक तरह का स्टिमुलस हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। मान लीजिए अगर आप किसी हॉट आयरन या फिर किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, तो वो जो गर्मी का एहसास है, ठीक है, तो वो गर्म चीज़ जो है वो एक तरह से क्या होगी, आपकी स्टिमुलस होगी आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि वो आपके रिसेप्टर्स को क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, तो स्टिमुलस हम उसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका नर्वस सिस्टम में? एक तो ब्रेन होगा आपका, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो ब्रेन तो होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी होती है इसमें, और नर्व्स, जितनी भी नर्व्स हैं आपकी, जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो बेसिकली इन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशलाइज सेल नोन एज न्यूरॉन्स। तो स्पेशलाइज सेल के बने हुए होते हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर। इनके नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन्स ही बनाते हैं आपके सारे नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और न्यूरॉन जो है, ये एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल जो है आपका क्या है? ये न्यूरॉन होता है आपका। तो न्यूरॉन्स की बात करते हैं आगे। तो न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इट इज कंपोज्ड ऑफ
अब ये भी देखिए स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए एक मकान है और वो मकान जो है ईंटों से बना हुआ है। जो ईंटें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं और क्या बना ले रही है, एक पूरी बिल्डिंग बना देती है। ठीक है, तो उसकी मोनोमर यूनिट या फिर उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट किसको बोला जाएगा, उन ब्रिक्स को बोला जाएगा। ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, तो इसलिए हम न्यूरॉन सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। अब फंक्शनल यूनिट की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है उसको अपना फंक्शन किसकी वजह से मिल रहा है, इसको मिल रहा है जो न्यूरॉन सेल्स है। तो इसलिए न्यूरॉन्स साथ ही साथ क्या बन जाते हैं, फंक्शनल यूनिट भी बन जाते हैं। ये सिमिलर आप मान सकते हैं, जैसे किडनी में हमने नेफ्रॉन्स पढ़े थे, नेफ्रॉन्स को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह रहे थे किडनी की। सिमिलर वे में आप न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब जो न्यूरॉन होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक होती है इसमें सेल बॉडी जिसको हम साइटोन कहते हैं। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलीज एंड नीजल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, ये जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर क्या होता है आपका, एक तो सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है सेल के अंदर वो प्रेजेंट होंगी, जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और भी जो अदर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वो आपकी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इसी के साथ आपके नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रेन्युलर बॉडीज कहते हैं, जिनको आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, तो ये डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या है आपके नीजल ग्रेन्यूल्स हैं आपके। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं या फिर साइटोन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है पूरा आपका क्या है, सेल बॉडी या साइटोन। बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड ये जो सेल बॉडी होती है आपकी, इससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स जो होती हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये जब भी कोई नर्व इम्पल्स आएगा दूसरे न्यूरॉन से, तो जो रिसीव होगा एक न्यूरॉन के अंदर, वो यही डेंड्राइट्स जो होती हैं रिसीव करने में हेल्प करती है आपकी। नीजल ग्रेन्यूल्स आपको पता चल गया, ये ग्रेनुलर बॉडीज है। ठीक है, हाँ एक बात आप खासकर याद रखिए कि ये जो आपका नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं और जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ये आपकी एब्सेंट है। देखिए एक्सोन में, एक्सोन बिल्कुल खाली पड़ा है। एक्सोन में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, कुछ भी नहीं बनाया हुआ, खाली पड़ा है। तो ये याद रखना आपको, एक्सोन में एब्सेंट होती है ये चीज़ें। ठीक है, और राइबोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं एक्सोन के अंदर। फिर इसी के बाद ये आपको कुछ सेल्स दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर वाले, इन सेल्स को क्या बोला जाता है, श्वान सेल्स बोला जाता है। सॉरी, ये जो डार्क स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये आपके श्वान सेल्स हैं। एंड जो ये श्वान सेल्स होते हैं, ये एक माइलिन शीथ जो होती है वो सिक्रीट करते हैं, जो एक्सोन के चारों तरफ सिक्रीट हो जाती है। ठीक है, एक्सोन को चारों तरफ से घेर लेती है, आप कंबल मान सकते हैं बेसिकली। या फिर एक वायर जो होती है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है ना रूम्स में, तो इलेक्ट्रिकल वायर जो है, आप उसके ऊपर जो रबर चढ़ी हुई है, एक तरह से प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई है, आप उसको मान सकते हैं क्या, माइलिन शीथ। ठीक है, और वो माइलिन शीथ किसने सिक्रीट करी है, आपकी श्वान सेल्स ने सिक्रीट करी है। एंड कहीं कहीं जगह क्या होगा कि आपकी माइलिन शीथ जो होगी ना वो एब्सेंट होगी, जैसे ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे देखिए माइलिन शीथ एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ ये वाला रीजन है, माइलिन शीथ एब्सेंट है, यहाँ पे भी माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो बेसिकली जिस रीजन में माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहाँ पे थोड़ी सी ग्रूव बन जाती है। ठीक है, ग्रूव मतलब एक दरार सी बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट इज, एंड लास्ट में आपका एक्सोन टर्मिनल आ जाता है। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल जो लास्ट पॉइंट होता है आपका, एक्सोन नॉब बनती है वहाँ पे, और जो लास्ट बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लास्ट में, ठीक है, थोड़े डायलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। यही आगे जाके क्या बनाएंगे, सिनेप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिनेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से नर्व सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो सेल बॉडी जो है आपको पता चल गया कि क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज एंड नीजल ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्युलर बॉडीज कहते हैं जिनको, वो किस में प्रेजेंट है, आपकी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। डेंड्रोन या फिर डेंड्राइट की बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट फाइबर होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं कहाँ से, साइटोन से। मैंने बताया था साइटोन बॉडी से। देयर सब ब्रांचेस जिनको डेंड्राइट्स बोला जाता है, ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन। तो इनका फंक्शन यही होता है कि साइटोन की तरफ अपने जो सिग्नल आ रहा है दूसरे न्यूरॉन से, उसको ट्रांसमिट करना सेल बॉडी में बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सोन। तो एक्सोन क्या होता है आपका, अ लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी।
तो जो सेल बॉडी थी, अब उससे जो सिग्नल को दूर लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा, आपका एक्सोन लेके जाएगा। एक लॉन्ग फाइबर होता है जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोनाइट। और जब एक्सोन आगे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनाइट बोलते हैं। ईच एक्सोनाइट एंड्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। और लास्ट में जाके हर एक एक्सोनाइट जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब। मैंने बताया था डायलेटेड स्ट्रक्चर थोड़ा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब ही आगे जाके क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या बनेगा, इसका सिनेप्सिस बनेगा। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली। एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाईपोलर, एक होता है मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, जिन ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें एक ही एक्सोन होगा और कोई भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होंगी उस न्यूरॉन के अंदर। और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें एम्ब्रियो में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो एम्ब्रियो जो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके अंदर हमें ऐसे न्यूरॉन देखने को मिलते हैं जो क्या होते हैं, अपने आप में यूनिपोलर होते हैं। उनमें एक एक्सोन तो होगा बट उनमें डेंड्राइट्स नहीं होंगी। ठीक है, याद रखिएगा एग्जांपल क्या है, एम्ब्रियो। बाइपोलर कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, एक एक्सोन होता है और एक ही क्या होता है, डेंड्रोन होता है उसमें। और ये हमें देखने को मिलता है रेटिना के अंदर। जो हमारी आई होती है, आई, तो आई में जो पीछे की तरफ हमारी लेयर होती है, सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है पीछे की तरफ, दैट इज रेटिना, जिसे आंख का पर्दा भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेटिना में जो आपके सेंसिटिव सेल्स होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, आपके बाइपोलर सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक एक्सोन होता है और एक ही क्या होता है, डेंड्रोन होता है। नेक्स्ट इज योर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो एक एक्सोन होगा और दो या दो से ज़्यादा आपके डेंड्रोन्स प्रेजेंट होंगे। एक एक्सोन तो होगा, लॉन्ग फिलामेंट तो होगा एक, और दो या दो से ज़्यादा आपकी डेंड्राइट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी मैसेज को रिसीव करने के लिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन यही है, क्या, मल्टीपोलर वाला, फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पे हमें मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जिसमें कि आपकी स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के साइड में से निकल रही होती है आपकी, तो वो भी क्या है आपकी, वहाँ पे कौन से प्रेजेंट होंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सोन। एक्सोन कितनी तरह के होते हैं। अब एक्सोन मैंने बताया था कि भाई एक एक्सोन ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगी, उनका कंबल होगा। कंबल मतलब एक कवरिंग होगी जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, जो किसने सिक्रीट करी है, श्वान सेल्स ने सिक्रीट करी है। तो बेसिकली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। न्यूरॉन भी बोला जाता है इनको, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी उनको माइलिनेटेड बोल दिया, जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होगी उनको नॉन माइलिनेटेड बोल दिया। तो माइलिनेटेड एक्सोन क्या होते हैं आपके, इट इज एनवलप्ड विद श्वान सेल्स। तो इनके पास श्वान सेल्स जो होते हैं एक्सोन के पास, वो प्रेजेंट होते हैं, दैट फॉर्म्स द माइलिन शीथ। और वही क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं अराउंड द एक्सोन, तो एक्सोन के चारों तरफ। फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड। ये हमको जो माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व्स में। क्रेनियल नर्व्स मतलब जो क्रेनियम से बाहर आ रही है आपके, और स्पाइनल नर्व्स में भी हमें यही देखने को मिलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या माइलिनेटेड एक्सोन्स। द वाइट कलर्ड एरिया, अब जितना भी आपके नर्वस सिस्टम में जो हमको वाइट कलर्ड एरिया दिखता है, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से बना हुआ होता है और उसको हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, वाइट मैटर कहा जाता है। ब्रेन को जब हम एनाटॉमिकली देखते हैं तो जो बाहर का ब्रेन का एरिया है दैट इज ग्रेइश इन कलर, और अगर अंदर वाला एरिया देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे वो थोड़ा वाइटिश होता है कलर में। तो माइलिनेटेड वाला पार्ट जो है थोड़ा अंदर की साइड होता है। ठीक है, और वाइट कलर किसकी प्रेजेंस से मिल रहा है उसको, दैट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की प्रेजेंस से। ठीक है, गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। तो मैंने बताया था जहाँ पे दो माइलिन शीथ होती है वो जुड़ती है और वहाँ पे हल्का सा गैप होता है, तो उस गैप को हम क्या बोलते हैं, हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। अब नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें श्वान सेल्स प्रेजेंट होंगे बट नो माइलिन शीथ। इसमें श्वान सेल्स प्रेजेंट है बट इसमें माइलिन शीथ वो सिक्रीट नहीं करते हैं। द ग्रे कलर्ड एरिया, अब जितना भी ग्रे कलर्ड एरिया है आपके नर्वस सिस्टम का, वो होता है एरिया विदाउट माइलिन शीथ, इज कॉल्ड
ग्रे मैटर, उसको ग्रे मैटर कहा जाता है, और वो ग्रे इसलिए ही होता है क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ठीक है। फाउंड इन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो जितना भी आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और जितना भी आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, वो आपका नॉन माइलिनेटेड एक्सोन से बना हुआ होता है, और कैसे कलर का रहेगा, ग्रे कलर का रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, इन दो में ही डिवाइड होता है बेसिकली कलर बेसिस पे आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो व्हाइट होगा तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट है या माइलिनेटेड एक्सोन प्रेजेंट है, और अगर ग्रे कलर का होगा तो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जो आपका नर्व इम्पल्स होता है, जो आपका मैसेज है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो कैसे जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट होता है आपके न्यूरॉन्स में। तो अगर मैं बात करूँ तो इम्पल्स ट्रांसमिशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, इट हैज़ थ्री टाइप। तो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन है, ये अपने आप में कैसी नेचर का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल भी होगा प्लस केमिकल नेचर में भी होगा, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब रेस्टिंग स्टेट में होगा, जब कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है इम्पल्स का, तो पहली बात तो उसका जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगी, वो उसको मेंटेन किया जाएगा बेसिकली मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है ये, अगर मान लीजिए न्यूरल मेम्ब्रेन है आपकी, मतलब न्यूरॉन का सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, उसमें कई सारे सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ आयंस को सिलेक्ट करके ही क्या करते हैं, अपने थ्रू जाने देते हैं, ट्रांसपोर्ट होने देते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स, वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स, जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है, एक्सोन की मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, एक्सोन की मेम्ब्रेन जो होती है, वो ज़्यादा परमिएबल होती है, किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए, मतलब सोडियम आयंस के लिए वो ज़्यादा परमिएबल है। ऑल्सो द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन एक्सोप्लाज्म, और वो इम्परमिएबल होती है किसके लिए, एक तो नेगेटिवली चार्ज जितने भी प्रोटीन्स होंगे एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। तो एक्सोप्लाज्म में भी, तो एक्सोन में भी तो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको क्या कह रहे हैं हम, एक्सोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। और उसमें से क्या नहीं आ सकता बाहर, आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाहर नहीं आ सकते, ठीक है, ना ही अंदर जा सकते, क्योंकि इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। और ये पहले से ही कहाँ पे प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, आपके एक्सोन के अंदर, ठीक है, तो बाहर नहीं आ सकते बेसिकली। और सोडियम आयंस के लिए ये ज़्यादा परमिएबल होती है एक्सोन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। तो सोडियम आयन के लिए काफ़ी परमिएबल है, अंदर बाहर जा सकते हैं वो, ठीक है। Next is therefore the concentration of potassium and negatively charged proteins in exoplasm is high and concentration of sodium ions is low. तो हुआ क्या कि जो कंसंट्रेशन था किसका, पोटेशियम आयंस का और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, वो एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। एंड जो कंसंट्रेशन होता है सोडियम आयन का, वो कम हो जाता है, क्योंकि भाई वो तो परमिएबल है, तो बाहर आ गए सोडियम आयंस, ठीक है। बट अंदर क्या रह गया आपका, पोटेशियम आयंस रह गए एक्सोप्लाज्म के अंदर, और आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स रह गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, तो फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो जो फ्लूइड प्रेजेंट है आपका कहाँ पे, आपके एक्सोन की मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, उसमें क्या है आपका लो कंसंट्रेशन रहेगा पोटेशियम का, और हाई कंसंट्रेशन रहेगा सोडियम आयंस का। तो बाहर की साइड, मेम्ब्रेन के बाहर की साइड आपका पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, और सोडियम का कंसंट्रेशन वो है ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ पोटेशियम कहाँ ज़्यादा मिलेगा रेस्टिंग स्टेट में, तो वो एक्सोन के अंदर ज़्यादा मिलेगा और बाहर कम मिलेगा। सोडियम बाहर ज़्यादा मिलेगा, अंदर कम मिलेगा रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। नाउ दिस फॉर्म्स एन आयनिक कंसंट्रेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रेडियंट मैंने बताया था क्या होता है, कि हाई कंसंट्रेशन और एक लो कंसंट्रेशन। अगर आपको एक ही चीज़ का हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन मिल रहा है और बीच में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या डेवलप हो गया आपका, आयनिक एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब क्या होगा आगे, जो आयनिक ग्रेडियंट है आपका,
वो मेंटेन किया जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। अब एनर्जी का खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसके द्वारा? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। सोडियम पोटेशियम पंप को आप एक तरह से मोटर मान सकते हैं, जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ही क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन है उसी को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि हाई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो आ रही है अभी, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। सोडियम पोटेशियम पंप का काम ये है जहां हाई कंसंट्रेशन है वहीं उस चीज का कंसंट्रेशन वो बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ये? इट ट्रांसपोर्ट थ्री सोडियम आयंस आउटवर्ड एंड टू पोटेशियम इनटू द सेल। अब बाहर की तरफ सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो यही काम कर रहे हैं कि 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंक रहे हैं और 2 पोटेशियम आयंस को एक्सोन की मेम्ब्रेन के अंदर फेंक रहे हैं, मतलब एक्सोन के अंदर फेंक रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो आउटर जो मेम्ब्रेन है आपकी वो क्या हो जाएगी? एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी, और जो इनर सरफेस होगा आपकी एक्सोन मेम्ब्रेन का वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? कैरी करेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए आपकी मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर, तो अब इसी स्टेट को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अभी देखिए कंडक्शन अब भी नहीं हो रहा है नर्व इम्पल्स का, पर अब जो डेवलप हो गया है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस एक मेम्ब्रेन में पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो गया ना, तो एक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका जनरेट हो चुका है वहाँ पे। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर नापते हैं हम रेस्टिंग स्टेट में अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? आपका रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है? कि जब एक्शन में आ जाएगा वो, ठीक है, बेसिकली मूवमेंट होगा जब उसका। तो मैं मेम्ब्रेन एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे आप ये देखिए कि जो एक्सोन की ये कैसी लेयर है? आउटसाइड वाली, और ये कैसी है? इनसाइड वाली। तो आउटसाइड पे आप देख रहे हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ हुआ है, और नेगेटिव पे, सॉरी, इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। ये कैसी स्टेट है आपकी? रेस्टिंग स्टेट में। अब होगा क्या? जिस जगह पे आपका स्टिमुलस आएगा वहां पे पोलैरिटी क्या होगी? अब रिवर्स होगी, ठीक है। वहां पे क्या होने वाली है? पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब वो क्यों होती है वो रीजन हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, जब मान लीजिए कोई स्टिमुलस मिला, टच किया या फिर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया या कोई किसी भी तरह का स्टिमुलस मिला, तो वहाँ पे जो एक्सोन न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, उनके जो एक्सोन होगा, एक्सोन मेम्ब्रेन होगी, तो जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी? साइट ए बिकम्स परमिएबल टू। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 साइट का नाम दिया है, ठीक है। एक साइट इसको बोल दिया ए, ठीक है, इस साइड को क्या बोल दिया? साइड ए, और इस साइड को क्या बोल दिया? साइड बी, ठीक है। मतलब ये जस्ट आ गया है, ये बी साइड है और ये ए साइड है आपकी इतनी, ठीक है, और ये इतनी क्या है आपकी? बी साइड है एक तरह से। तो साइड ए जो है अब क्या होगा वहाँ पे? वो काफ़ी ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी किसके लिए? सोडियम आयंस के लिए। रैपिड इन्फ्लक्स होगा वहाँ पे, मतलब रैपिड मूवमेंट होगा सोडियम आयंस का बाहर से अंदर की तरफ। यहाँ पे एरो से दिख भी रहा है आपको, दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना? तो देखिए हुआ क्या, यहाँ से रैपिड इन्फ्लक्स हुआ किनका? सोडियम आयंस का अंदर की तरफ। अब जैसे ही ये सोडियम आयंस अंदर आए, ठीक है, जैसे ही अंदर आए तो रैपिड इन्फ्लक्स जब हुआ इनका, तो रिवर्सल हो जाता है किसका? पोलैरिटी का, एट द साइट, उस साइट पे जहाँ पर्टिकुलरली वो स्टिमुलस आया था, ठीक है। तो वहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मतलब जहाँ पे अब अंदर माइनस था अब वहाँ पे प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बाहर क्या था? रेस्टिंग स्टेट में पॉजिटिव था, अब बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आउटर नेगेटिव एंड इनर पॉजिटिव हो जाएगी अब वो साइट, ठीक है। इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और इसी स्टेट को क्या बोलते हैं हम? डीपोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे प्लस था, पर क्योंकि जैसे ही रैपिड इन्फ्लक्स हुआ तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बाहर, ठीक है।
और अंदर क्या था, पहले माइनस माइनस था, ये देखिए रेस्टिंग स्टेट में तो माइनस माइनस ही था पहले, और रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा प्लस प्लस हो गया अंदर वाला, ठीक है, पॉजिटिव हो गया ये। तो इसी को बोलते हैं क्या, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या हो गई अब यहाँ पे, रिवर्स हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। अब जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, जब डीपोलराइजेशन होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया है, एक नर्व इम्पल्स की क्या हो गई है, जनरेशन हो गई है, ठीक है, इसी को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं हम। अब ये एक्शन पोटेंशियल ही होगा जिसको हम नर्व इम्पल्स बोल रहे हैं। अब ये नर्व इम्पल्स एक साइड से दूसरी साइड क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अब ट्रैवल क्यों करेगा, देखिए जब भी प्लस माइनस चार्ज डेवलप होते हैं तो करंट तो फ्लो करेगा। अब आप साइट ए देखिए और साइट बी देखिए, साइट ए जो है, ये वाली साइट, ये साइड ए है आपकी, ये साइड बी है। करंट फ्लो करता है कहाँ से कहाँ बताइए, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा। तो अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए एक्सोन की, तो साइट बी से साइट ए जाएगा आउटर सरफेस पे करंट, ठीक है। और अगर अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन की बात की जाए तो साइट ए से साइट बी जाएगा, वही यहाँ पे दिखाया है, ये जो दिखाया है ना यहाँ पे, ये वही दिखाया है, देखिए बी से ए की तरफ आ रहा है, साइट ए की तरफ करंट, और ए से बी की तरफ जा रहा है। अब एक्चुअल में फिर होगा क्या कि जो ये प्लस वाला पार्ट था, ये इधर आ जाएगा अंदर की तरफ, है ना, अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आगे जाके, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा। और ये प्लस वाला जब इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस जनरेट हो जाएगा। अब जो साइड ए पहले नेगेटिव थी, और सॉरी, हाँ, जब आपका एक्शन पोटेंशियल था तो यहाँ पे बाहर नेगेटिव थी, अंदर पॉजिटिव थी। अब वो सेम चीज केस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया बी साइड पे, और जब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा था तो बाहर यहाँ पे वापस से प्लस, और अंदर क्या हो गया होगा, वापस से माइनस हो गया होगा, मतलब वापस से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आ गया होगा। कहने का मकसद ये है बस पूरा का पूरा, कि आपकी जो साइट ए थी और साइट बी थी, साइट बी अब बिल्कुल कैसी बन गई है, साइट ए की तरह, ठीक है। और साइट ए वापस जैसी पहले हुआ करती थी रेस्टिंग स्टेट में, वो अपनी वापस बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, तो एट साइट ए, एट साइट्स एट साइट बी, जो साइट बी है आपकी, आउटर सरफेस इज पॉजिटिव। आउटर सरफेस हमारा क्या है, देखिए पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव है पूरा का पूरा, ठीक है। आउटर सरफेस इज पॉजिटिव एंड इनर सरफेस इज नेगेटिव, अंदर वाला सरफेस नेगेटिव है। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस, और करंट जो फ्लो करेगा वो अंदर वाले सरफेस पे करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ साइड ए से साइड बी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अ करंट फ्लोज फ्रॉम ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। समझ आई कि क्यों गया, प्लस से माइनस जाएगा तो अंदर की तरफ जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है वहाँ पे साइड ए से साइड बी की तरफ जाएगा। ऑन द आउटर सरफेस, अगर हम आउटर सरफेस की बात करें तो करंट फ्लोज फ्रॉम साइट बी टू साइट ए टू कंप्लीट द सर्किट। अब सर्किट तो कंप्लीट होगा ना, जब अंदर से करंट आ रहा है, अंदर से तो साइड ए से साइड बी जा रहा है, और बाहर की तरफ साइड बी से साइड ए तक जा रहा है, तो ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। टू कंप्लीट द सर्किट हैंस द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। तो पोलैरिटी जो बी साइड की थी वो रिवर्स हो जाएगी, और अब जो एक्शन पोटेंशियल था वो एक तरह से कहाँ जनरेट हो गया आपका, साइट बी के ऊपर जनरेट हो गया है। बी में देखिए अब बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे बाहर की तरफ आगे जब, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तरह से यही आपका क्या है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रिवर्स हो गई थी पोलैरिटी एंड इज जनरेटेड एट साइड बी, दैट इज एक्शन पोटेंशियल एट साइड ए अराइव्स एट साइड बी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइड ए पे एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट था, अब वो कहाँ पे पहुंच गया है, साइड बी पे पहुंच गया है, ठीक है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द एक्सोन। तो ये जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को रिपीट किया जाता है अलॉन्ग द एक्सोन की जितनी भी पूरी मेम्ब्रेन की लेंथ है, एंड द इम्पल्स इज कंडक्टेड, और ये इम्पल्स एक साइड से दूसरी साइड आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो रहा है, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है थ्रू आउट द एक्सोनल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट इज
द राइज इन द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन। अब जो एकदम से इन्फ्लक्स हुआ था ना, जब स्टिमुलस मिला था हमारे न्यूरॉन एक्सोन की मेम्ब्रेन को, तो जो एक रैपिड इन्फ्लक्स हुआ था किसका, सोडियम आयंस का, वो काफ़ी छोटे टाइम के लिए होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होता है। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिबिलिटी टू पोटेशियम आयंस। और एकदम से जस्ट जैसे ही वो होता है उसके तुरंत बाद ही क्या होता है, परमिबिलिटी जो होती है किसकी, पोटेशियम आयंस की, इंक्रीज हो जाती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयंस हैं वो आपकी एक्सोन मेम्ब्रेन से इधर उधर बाहर या अंदर जा पाएंगे, परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तुरंत ही, ठीक है, ताकि वो वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो थी उसको इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। इमीडिएटली पोटेशियम आयन डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब होगा क्या कि पोटेशियम आयंस एकदम से अंदर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, डिफ्यूज करेंगे आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। और वापस से क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को रीस्टोर कर देंगे, रेस्टिंग स्टेट में ले आएंगे, रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। दस द फाइबर बिकम्स रेडी फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। अब वो नर्व फाइबर जो है या एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वो अगले स्टिमुलस के लिए दोबारा से तैयार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है आपका, सिनेप्स जो होता है बेसिकली फंक्शनल जंक्शन है आपका बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो फंक्शनल जंक्शन होता है, मतलब जोड़ होगा जो, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम, सिनेप्स कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, एक केमिकल सिनेप्स होता है। सिनेप्स दिखाते हैं आपको, देखिए कैसा होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, सिनेप्स है, ठीक है। ये आपका सिनेप्टिक स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये जो एक्सोन नॉब आया, ठीक है, ये एक्सोन नॉब है आपका एक न्यूरॉन का, और ये जो ये वाली लेयर है ये क्या है, आपकी दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। इसलिए इसको क्या लिखा गया है, देखिए इसको लिखा गया है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसको क्या लिखा गया है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये बीच में जो जितना भी स्पेस दिख रहा है ना, ये जितना भी स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। और देखिए, आपकी एक्सोन नॉब जो होती है इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, मतलब बबल्स बोल सकते हैं आप। इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली केमिकल मैसेंजर है एक तरह का, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन, गाबा, ठीक है, ये सारा इसके अंदर क्या होता है, वेसिकल्स के अंदर फिल्ड होता है। अब होगा क्या, जब आपका ये वेसिकल आपकी जो एक्सोन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। अब ये फ्यूज जो मूवमेंट होता है इनका, आपके वेसिकल्स का, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्व इम्पल्स ही होता है। यहाँ से नर्व इम्पल्स आएगा, ठीक है, और ये जो वेसिकल्स हैं ये इधर मूव करेंगे मेम्ब्रेन के पास। जैसे ही एक वेसिकल यहाँ मेम्ब्रेन से टच करेगा, ये फ्यूज कर गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सारा का सारा आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते ही, तो ये मेम्ब्रेन किसकी थी, अब ये थी दूसरे वाले न्यूरॉन की, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए रिसेप्टर्स लिखा हुआ है, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर के साथ ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर था ये क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा ये ऐसे करके, और यहाँ पे अब मेम्ब्रेन में क्या जनरेट हो जाएगा, एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा इस मेम्ब्रेन में, इस वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में यहाँ पे, और वो आगे बढ़ा दिया जाएगा आपका साइटोन तक, सेल बॉडी तक, ठीक है। तो समझे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे पहुंचा। अब यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया था सिग्नल, पर यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया था, केमिकल फॉर्म में, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल जंक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी होते हैं आपके पास, केमिकल सिनेप्स भी होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में आपका क्या होगा, सॉरी, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होगा आपका, इन दिस द मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में देखिए, इन दिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो पोस्ट सिनेप्ट, प्री मतलब पहले वाला न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब बाद वाला, आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये दोनों क्या होने वाले हैं आपके, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने वाले हैं, पास पास होने वाले हैं। सो
इम्पल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन ऑफ अलोंग द एन एक्सॉन। तो जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा किसमें, जैसे ट्रांसमिशन होता है अलोंग एन एक्सॉन, जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, ठीक है। इतने ज़्यादा पास पास होते हैं वो। मान लीजिए जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो डिस्टेंस था एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बीच में, वो ना के बराबर है, मतलब बिल्कुल दोनों मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है ऐसे। तो डायरेक्टली क्या होगा, जो आपका जैसे एक्सोन में ट्रांसफर हो रहा था ना इम्पल्स, तो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वैसा का वैसा ही वो चला जाएगा। इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होता है वो फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस कम है दो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, एज कम्पेयर टू केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि उसमें पहले सिग्नल आएगा इलेक्ट्रिकल, फिर वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो केमिकल फॉर्म वापस से दूसरे न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम, और ह्यूमन सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, काफ़ी रेयर होते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल सिनेप्सिस, ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इन दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अब देखिए एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो हमने बात करी थी अभी यहाँ पे। तो ये जो पूरा रीजन था ये वाला, ये क्या है पूरा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये पूरा रीजन क्या है आपका, सिनेप्टिक क्लेफ्ट खाली, ठीक है, बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री वाला मतलब पहले वाला न्यूरॉन, और दूसरा जो लास्ट वाला न्यूरॉन है बेसिकली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है जिसमें फ्लूइड फील्ड है, उसको ही क्या कह रहे हैं हम, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। तो प्री सिनेप्टिक रीजन हैव स्वेलिंग्स कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब या बटन्स कहते हैं जिनको। तो जो पहले वाला न्यूरॉन है उसमें स्वेलिंग वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर हमने बताया था, ठीक है, दैट इज सिनेप्टिक नॉब। दे कंटेन्स सिनेप्टिक वेसिकल्स, वो वेसिकल्स की बात की गई थी ना जिसमें बबल जैसे स्ट्रक्चर है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड है। तो बेसिकली दे कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है जो आपका एक तरह से केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इम्पल्स, ठीक है, और वो आगे जाके अब दूसरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ जाके बाइंड करेगा। तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल जो मैसेज था वो केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, फिल्ड विद दी न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर में क्या क्या होता है आपका, एसिटाइल कोलिन या एड्रीनलिन, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, बेसिकली केमिकल्स। तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया, केमिकल सिनेप्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स से आपका जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, पहले इम्पल्स क्या करेगा, पहुंचेगा आपके एक्सोन टर्मिनल तक, जो लास्ट पोर्शन होता है आपके न्यूरॉन का, एक्सोन टर्मिनल, एंड देन वहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होंगे वो बाइंड करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जो मैंने बताया था यहाँ पे ये सिनेप्टिकल वेसिकल है जो, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है न्यूरॉन की उसके साथ क्या कर गए, बाइंड कर गए बेसिकली, ठीक है, और रिलीज करेंगे क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। अभी देखिए इन्होंने अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ पे रिलीज कर दिया ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है, तो रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को, इट डिफ्यूजेज अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला जो रीजन था खाली वहाँ पे आ गए हैं ये, कंबाइन विद द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक ये जो मेम्ब्रेन है दूसरे वाले न्यूरॉन की, इसके ऊपर मैंने बताया था रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब इन रिसेप्टर्स के पास आके क्या न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है, वही बात लिखी गई है, कंबाइन करेगा रिसेप्टर्स के साथ जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, एंड ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल्स अलाउइंग एंट्री ऑफ आयंस। अब जैसे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे वैसे वैसे इसमें से जो आयन चैनल्स प्रेजेंट थे मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या होंगे, ओपन या क्लोज होंगे। जैसे ही ओपन क्लोज होंगे तो ऑब्वियसली ग्रेडियंट बनेगा, ग्रेडियंट बनेगा तो एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स अलाउइंग एंट्री ऑफ आयंस, आयंस का बाहर जाना और अंदर जाना वो रेगुलेट होगा इसकी हेल्प से, एंड वहाँ पे तभी क्या हो जाएगा आपका एक नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, द एक्शन पोटेंशियल कैन बी एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी। तो ये मैसेज की बात कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि नर्व मैसेज क्या होता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, एक्शन पोटेंशियल को ही कहते हैं हम। अब एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, मतलब कि दूसरे सेल्स को एक्टिवेट कर देगा जिस तक वो सिग्नल जा रहा है। जैसे मसल सेल की बात कर लेते हैं, तो मसल सेल को वो कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकता है और रिलैक्स भी करा सकता है, ठीक है। अगर एक्साइटेटरी की बात करें, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो एक्साइटेटरी वाला मैसेज गया होगा
हमारे मसल सेल्स तक विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। और अगर इनिबिटरी वाला जाएगा तो मसल हमारी रिलैक्स करेगी बेसिकली। तो यही बात की गई थी कि एक्शन पोटेंशियल आपका एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनिबिटरी भी हो सकता है एक्शन में। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया कि हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए। एंड आप मेरे को अपना एक तरह से प्यार दिखा सकते हैं एक लाइक देके और सब्सक्राइब करके। सो बेसिकली अगर आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस चाहिए, ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो आप बिल्कुल बायोजीनियस नीट प्रेप पे भरोसा कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ये वीडियो काफ़ी लेट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and just keep studying, keep smiling and keep hustling. Thank you very much. Thank you.